Good morning, children. Children, in our chapter number 5, Anita and the Honeybees, yesterday we have seen that Anita Khushwaha, who was living in Buchaha village in Muzaffar district in Bihar, how she was willing to go to school and how her parents didn't allow her to go to school. And one day what happened? One day one of the teacher from the village came to her home and told her parents about the importance of the study. And she also told that there will be no fees up to class 8 for each and every child. Okay, now let us move forward. I have given you one activity to complete things and how much money you have spent, and I hope you have completed. Okay, now see the next part of the chapter. Staying in school. Time passed and soon I completed class 5. I knew that we would need to spend more in class 6. My parents said that it was time for me to leave school, but I wanted to study more. I found a way to do this. I started to teach younger children. From the money that I got, I was able to continue my own studies. Now what happened? Time passed and soon Anita has completed her standard 5. But what happened? Now she came to know, even her family members also came to know that for standard 6, they have to spend more money. Not regarding school fees, but regarding extra stationery for the school. Okay, and what her parents told her, now it's time to leave the school. But she didn't want to leave the school. She wanted to study more. And for that, she had found one way. And which was that way? She started to teach younger children. And from that money, she was able to continue her own studies. One sweet memory. I remember some older boys in my village also used to teach young children. They did not like it when I started teaching. And what happened? In the same village, there were few older boys. They also started to teach the young children. Okay, and they didn't like. When Anita started to teach young children, they didn't like. They started to scold and scare the children. और फिर उन्होंने क्या किया? बच्चों को डराना और धमकाना शुरू कर दिया जो अनीता के पास में पढ़ने जाते थे, so that they would not come to me. Me means for Anita, कि ताकि वो अनीता के पास में सीखने ना जाए. For some time, all the children except 2 stopped coming to me. कुछ समय के बाद में क्या हुआ? सारे बच्चे सिर्फ 2 बच्चों को छोड़कर, in this picture you can see only 2 children are here. Okay, but soon all came back because I used to teach them with love and care. पर थोड़े ही समय के बाद में क्या हुआ? सारे बच्चे फिर से लौट आए. क्यों? क्योंकि अनीता उनको बहुत प्यार से, केयर से पढ़ाती थी. इसलिए यहाँ देखो बेटा, अनीता भी कोई बहुत बड़ी बच्ची नहीं है, वो सिर्फ 6 स्टैंडर्ड की बच्ची है. तो ऑब्वियसली वो 1st to 4th या 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाती होगी. उनमें भी वो केयर से, लव से पढ़ाती थी. बच्चे उसके तरफ अट्रैक्ट होकर फिर से उसी के पास में पढ़ने के लिए आए हैं. मीन्स लव मैटर्स. Let us talk. Do you know someone who wanted to study but could not do so? Talk about them in the class. Okay. क्या आपको पता है ऐसा कोई बच्चा आपके नियर बाय, हो सकता है आपके मेड का या सर्वेंट का हो, कि जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पाता है? अगर ऐसा कोई है तो आपने क्या किया है उसके लिए? कुछ करना चाहते हो? कुछ किए? Just write about your experience regarding this. Now next,
Every child has a right to free education up to class 8th. Do you think that all children are able to study up to class 8th? Discuss. अब हर बच्चे के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्लास 8 तक की एजुकेशन फ्री कर दिया. हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हर बच्चे को पढ़ने का राइट दिया है. लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि हर बच्चा पढ़ सकता है क्लास 8 तक? अगर एजुकेशन फ्री है तो बिल्कुल पढ़ सकता है. लेकिन पता है, कुछ बच्चे इतनी पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को अर्निंग सोर्स में हेल्प करते हैं, पैसे कमाने में हेल्प करते हैं, इसलिए भी वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते. लेकिन ऐसे बच्चे नाइट स्कूल भी अटेंड करते हैं, वो भी फैसिलिटीज उनके लिए है. ओके, डू यू नो व्हाट इज आरटीई एक्ट 2009? चिल्ड्रन, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट एक निकाला है 2009 में. ये हमको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? दिस प्रोवाइड्स द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14 ईयर्स. अब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन कंपल्सरी कर दिया है. अगर ऐसे में 6 to 14 ईयर्स का कहीं भी कोई बच्चा हमको अगर काम करते हुए दिखता है, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, किसी के घर पर, व्हाटएवर, किसी के आप देखते हो ना स्ट्रीट पर कुछ ये होते हैं, स्ट्रीट स्टॉल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी कुछ बच्चे वर्क करते हैं. तो ऐसे में जो भी लोग उनसे वर्क करवाते हैं, इट्स क्वाइट पनिशेबल एक्ट. ये पनिशेबल एक्ट है. उन लोगों को पनिश हो सकता है जो इन छोटे छोटे बच्चों से वर्क करवाते हैं, क्योंकि इनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन कंपलसरी कर दिया है. तो हम इतने छोटे बच्चों को काम पर नहीं रख सकते हैं. अगर आप है, आपके नज़र में आ रहा है, तो आप आपके एल्डर से इसके बारे में बात कर सकते हो. स्लोली I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. And what Anita started to do? जो प्रॉब्लम अनीता ने फेस किया था, वो नहीं चाहती थी कि उसके विलेज की अदर गर्ल्स भी सेम प्रॉब्लम को फेस करें. तो उसने क्या किया? स्लोली उसने दूसरे पेरेंट्स के साथ में बात करना शुरू कर दिया कि वो भी अपने डॉटर्स को स्कूल भेजें. माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क. और इसी के साथ साथ उसके पेरेंट्स का भी लुकआउट चेंज हो गया. उन्होंने देखा कि उनकी बेटी कितना बोल्डली अच्छा वर्क कर रही है, तो उसके पेरेंट्स ने भी उसको साथ देना स्टार्ट किया. माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी. और मदर ने क्या वर्क किया? मदर घर का पूरा काम कर लेती थी, सारा हाउस होल्ड कोर कर लेती थी, सारे घर के काम वो खुद करती थी ताकि अनीता को स्टडी के लिए ज्यादा टाइम मिले. एक सीक्रेट अनीता अपने लाइफ का शेयर करती है यहाँ पर. आई लर्नड हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल. आई डिड नॉट टेल एनीवन. आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मेनी टाइम्स, बट आई वॉज हैप्पी. हाँ, अनीता ने इन सारी चीजों के साथ साथ एक चीज और सीखी थी. क्या? मोटरसाइकिल राइडिंग सीखा था. शी लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, बट शी डिडंट टेल टू एनीवन. उन्होंने किसी के साथ में इस चीज को शेयर नहीं किया था. अब ये राइड करते वक्त वो कई बार गिरी, हर्ट हुई, बट स्टिल शी वॉज हैप्पी. ये बात तो है, अगर चीज नहीं सीखते हैं, विलिंगली सीखते हैं, अगर हमारी इच्छा से हम सीखते हैं, और वो करते वक्त अगर हम गिर जाते हैं, हमको कुछ हर्ट होता है, छोटा मोटा कट होता है, तो भी हम बड़े हैप्पी होते हैं और हम उस चीज को सीक्रेट रखते हैं, क्योंकि हम सबसे छुपा कर उस वर्क को करते हैं और हम किसी को सरप्राइज देना चाहते हैं, एकदम से हम सरप्राइज कर देना चाहते हैं कि सी आई हैव लर्नड हाउ टू राइड अ बाइक, हाउ टू राइड अ बाइसिकल. बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम छुप कर सकते हैं और करना चाहिए भी, छोटी छोटी चीजों को. ओके, फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग. There are many lychee trees in our area. Beta, have you seen lychee trees? See, this is a picture of lychee tree with flowers. Many people
डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। अब इनके एरिया में क्या होता था, बहुत सारे लोग इन यहाँ पर बी कीपिंग करते थे। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। एंड कलेक्ट हनी, और हनी को कलेक्ट करते थे। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। आई ज्वाइन अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। हाँ, अब अनीता ने क्या किया कि उसने भी एक कोर्स जो गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा था वो ज्वाइन किया। देखो बेटा, यहाँ पर जो ये लीची फ्लावर्स है होते हैं, इसका जो नेक्टर होता है बहुत स्वीट होता है। यू हैव सीन इन द अर्ली वीडियो विच आई हैड सेंट यू बिफोर 2 days। ओके, हाँ, इसके स्मेल से हनी बीज अट्रैक्ट होते हैं। ये फ्लावर है, ओके, एंड दिस इज द लीची फ्रूट। दिस you have seen and even you have enjoyed it। okay, ये है हनी कोम। इस तरह से हनी कोम होता है। तो अनीता के एरिया के लोग क्या करते थे, हनी बीज को कीप करते थे, बी कीपिंग करते थे, और उसका हनी पूरा कलेक्ट करते थे और उसको फिर सेल करते थे। अब ये कोर्स एक गवर्नमेंट के तरफ से स्टार्ट हुआ अनीता के एरिया में। अनीता ने भी उस कोर्स को स्टार्ट कर दिया, लर्न किया और फिर बाद में उस पर स्टार्ट कर दिया, वर्क स्टार्ट कर दिया। आई वॉज ओनली द गर्ल इन दिस कोर्स। अनीता बोल रही है कि वो अकेली गर्ल थी इस कोर्स में। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अब इस पीरियड के अनीता ने ये सीखा कि हनी बीज अपने एग्स कब ले करते हैं, तो वो है अक्टूबर टू दिसंबर। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, और ये एक बहुत बेस्ट टाइम था बी का। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। ओके चिल्ड्रेन, in our next period we will learn more about the same chapter. Till then, bye bye, have a nice day.